Today we will discuss about the life cycle of Markensia. Markensia is a bryophytic plant, and this plant is represented by 65 species all over the world. Only 11 species of Markensia are found in our country. Mostly this plant is found in western Himalayan zone, in Kashmir, in Himachal Pradesh, in Punjab. Mostly the Markensia plant are found in moist places of the hilly zones. The Markensia is a dioecious plant. Dioecious plant means male and female both plants are represented by separate gametophyte. One plant is male, other plant is female. So Markensia is strictly dioecious plant. Look here, this is the figure of the Markensia. It grows prostately on the surface of the rocks. Suppose this is the mountain slope and near the river area, near the catchment area of the river where moisture is maintained, at that place is Markensia grow prostately. Prostately का मतलब कि जैसे कोई चीज ऐसे जमीन में ग्रो कर रही है तो इसे क्या कहते हैं, इरेक्ट। और अगर लेट के ऐसे ग्रो कर रही है, जैसे घास, घास इरेक्ट भी होती है और प्रोस्टेट भी होती है, दोनों तरह से ग्रो करती है। इसीलिए घास आज अगर यहाँ दिखाई दे रही है तो एक महीने बाद हमको पूरे फील्ड में दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे भी बढ़ती है, इरेक्ट भी बढ़ती है और प्रोस्टेट भी बढ़ती है। तो मार्केंसिया का थैलस कैसे ग्रो करता है, प्रोस्टेटली ग्रो करता है। देखिए, दिस इज द थैलस ऑफ द मार्केंसिया एंड दिस इज द डॉर्सल व्यू ऑफ द थैलस। द डॉर्सल सरफेस, dorsal view, it shows the dorsal surface. The dorsal surface is smooth. कैसा है, dorsal surface is smooth and it show the dichotomously branching. I have told you the characteristic feature of the bryophytic plant is they have dichotomously branching, यानी जब भी बटेंगे दो बराबर भागों में बटेंगे, ऐसे बटेंगे। कभी भी पौधा ऐसे नहीं बढ़ता है, कभी भी पौधा ऐसे नहीं बढ़ता है। ऑलवेज इट shows branching and with two equal halves. कितने में बढ़ता है, दो इक्वल हाफ में बढ़ता है। तो this is the dichotomously branching of the Markensia, and in the mid region there is a prominent line and this line is called midrib. This is called midrib. And on the ventral surface, look here, this is dorsal and this is ventral view of the thallus. This is ventral view of the gametophyte of Markensia. Here you can see the brown shaped structure, brown colored structure. These brown structure, it represent the presence of rhizoid. Means just beneath the midrib, इस midrib के जस्ट नीचे, ऊपर midrib है और midrib के जस्ट नीचे यहाँ यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड राइजोइड। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं राइजोइड। एंड राइजोइड आर ऑफ टू टाइप, लाइक इन केस ऑफ रिक्सिया। जैसे रिक्सिया में दो प्रकार का आपने राइजोइड पढ़ा था, वैसे ही यहाँ भी दो प्रकार का राइजोइड होता है और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था एग्जाम में। तो देखो कैसा होता है, एक राइजोइड ऐसा होता है, ये देखिए, इस राइजोइड में हम क्या देख रहे हैं, द इनर वॉल इज स्मूथ, आउटर एंड इनर बोथ वॉल आर स्मूथ, नो एनी प्रोजेक्शन इनसाइड द राइजोइड, है ना, अंदर की ओर कोई प्रोजेक्शन नहीं है।
So this type of rhizoid is called smooth walled rhizoid. क्या कहेंगे इसे? स्मूथ वॉल्ड rhizoid. और दूसरा rhizoid कैसा होता है देखो, look here. यहां क्या देखा आपने? देखिए ये स्मूथ वॉल राइजोइड है और ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड है, क्योंकि इनर वॉल अंदर की ओर प्रोजेक्शन शो कर रही है. डेवलप द पेग लाइक प्रोजेक्शन एंड दिस टाइप ऑफ राइजोइड इज कॉल्ड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड. राइजोइड चाहे वो स्मूथ वॉल्ड हो चाहे वो ट्यूबरकुलेटेड हो, राइजोइड का मुख्य काम क्या है? इट फिक्स द प्लांट ऑन द सबस्ट्रेटम. जहां पर ये ग्रो कर रहा है उस धरती को पकड़ने का काम राइजोइड से करता है, और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल. धरती से पौधा क्या लेगा? मिनरल लेगा और वाटर लेगा. तो देयर आर टू फंक्शन ऑफ द राइजोइड. वन इज द anchoring the plant on the substratum, fixing the plant on the substratum, and second is the absorption of water and mineral for the growth and development of the plant. Look here, along with the rhizoid there are the pink color and violet color structures are also seen here, and these structure it shows the presence of scales. On the last turn you have studied about the life cycle of Rixia, and you knew that in Rixia there are only one type of scale, ligulate scale, but in case of Markensia scales are also two types. One scale which is violet in color, these scales are called ligulate scale. तो देखो मैं यहाँ बनाती हूँ लिगुलेट स्केल को. Look here, this is ligulate scale. ये आप देख सकते हैं लिगुलेट स्केल है, ये लिगुलेट स्केल. अब लिगुलेट स्केल को आप यहां देखें तो आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर का पोर्शन थोड़ा पतला है और पीछे का पोर्शन टंग लाइक है. जैसे काली जी जब बहुत क्रोध में आ गई थी और उन्होंने राक्षस का वध किया था, तो उनके गुस्से को कंट्रोल करने के लिए शंकर भगवान जमीन में लेट गए थे और फिर काली जी का पैर उनके ऊपर पड़ता है तो उन्हें प्रायश्चित होता है कि मैंने ये क्या कर दिया. तो उनकी जीभ क्या हुई थी? निकल आई थी ना जीभ बाहर. फील करो कि ये काली जी की देखो इतना छिपा लिया है, देखो जीभ दिखाई दे रहा है, यानी टंग शेप्ड होता है ना, टंग की तरह, जीभ की तरीके का. और इस स्केल को हम कहते हैं लिगुलेट scale. This scale is called ligulate scale. The other scale is called appendiculate scale. एक रो होती है ligulate scale की, दूसरी रो होती है किसकी? appendiculate scale की. अब देखो appendiculate scale कैसा होता है? appendiculate scale is divided into, ये किसमें डिवाइडेड होता है? हेड और बॉडी में. ये बिल्कुल भूत की तरह दिखाई दे रहा है ना, कि जैसे मैंने कोई ऊपर सिर बना दिया नीचे बॉडी बना दिया. तो ये स्केल कहलाता है एपेंडिकुलेट स्केल. देखा आपने? हाँ, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि मार्केंसिया की अगर हम मार्फोलॉजी की स्टडी करें देन वी विल फाइंड कि ये प्रोस्टेटली ग्रो करता है,
डाइकोटोमसली ब्रांचिंग शो करता है, मॉइस्चर प्लेसेस पर पाया जाता है। हिमालयन जोन में, हमारे भारतवर्ष में वेस्टर्न हिमालयन जोन में बंटली दिखाई देता है। साथ ही साथ हम और क्या देखते हैं कि जहां पहाड़ पर नदी बह रही होती है उसके बगल जो चट्टान होते हैं वहां पॉलीमार्फा स्पीशीज सबसे ज्यादा दिखाई देती है, रिक्सिया पॉलीमार्फा स्पीशीज। और ये डोर्सल व्यू है, डोर्सल व्यू पे हमको स्मूथ सरफेस दिखाई देता है, साथ ही साथ मिडरिप दिखाई देती है। ये इसका पिछला भाग है, ये इसका अगला भाग है। साथ ही साथ हम वेंट्रल व्यू को जब देखते हैं तो हमको राइजॉइड दिखाई देता है। राइजॉइड दो प्रकार का, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड। स्केल्स भी दो प्रकार के दिखाई देते हैं, लिगुलेट टाइप एंड एपेंडिकुलेट टाइप। एंड वन थिंग मोर हियर, जिससे आप मार्केंसिया के थैलस को तुरंत पहचान जाएंगे, वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ गैमा कप। लुक हियर, इसके छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। देखो, ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस जीनस। और रिक्सिया में ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन मार्केंसिया में गैमा कप पाया जाता है। ये कैसा कप है? गैमा कप है। और गैमा कप से ये क्या करता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ये गैमा कप देखो कितना खूबसूरत होता है, ऐसा होता है। आपको प्रैक्टिकल में शायद दिया गया होगा। देखो, ये आइसक्रीम का बाउल लग रहा है या नहीं? कप लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं? और इसी के अंदर गैमा होता है। ये तो गैमा कप है। इस गैमा के अंदर, गैमा कप के अंदर बहुत सारे गैमी होते हैं। गैमी प्लूरल फॉर्म है, गैमा सिंगुलर फॉर्म है। अब हम इसके एनाटॉमी को देखते हैं। एनाटॉमी की जब हम इसके स्टडी करते हैं, देन वी विल फाइंड, देखो, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द थैलस। एनाटॉमी ऑफ मार्केंसिया थैलस। ये मैं फिगर थोड़ा बड़ा इसलिए बना रही हूं कि पीछे जो बच्चे बैठे हैं उनको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए, यहां पर ये डिवाइडिंग लाइन होती है। हमने बहुत बड़ा फिगर आपके लिए बनाया है कि आपको जब इसका आप थैलस बनाए तो आपसे गलती ना हो। अब देखिए, मैं जैसे बना रही हूं, सेल बनाना सीखिए। आपके प्रैक्टिकल की जब परीक्षा होती है, आप जब थैलस ड्रा करते हैं एनाटॉमी, तो 90% बच्चे सेल को गलत बना देते हैं। इसलिए मैं बना रही हूं और आप देखते जाइए कि सेल ऐसे ही होती है। हमको जब भी बनाना है हम ऐसे ही बनाएंगे। देखा आपने कैसे बना दिया ये मैंने, है ना? यहां से वहां तक के थैलस को आप देखिए, दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। यहां कुछ इस तरह थैलस, ये है फोटोसिंथेटिक जोन।
ये देखिए यहां एयर पोर है, दिस इज एयर पोर। सेकेंड, दिस इज एपिडर्मिस। ये लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे यहां जो हमको लेयर दिखाई दे रही है वो कौन सी है? ये पूरा भाग कहलाता है फोटो सिंथेटिक जोन, और इस जोन का काम है फोटोसिंथेसिस करना। दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये नीचे का पोर्शन जो देख रहे हैं हम, जस्ट फोटोसिंथेटिक पोर्शन के नीचे का पोर्शन कहलाता है स्टोरेज जोन। स्टोरेज जोन। और इस थैलस को कहते हैं, ये कैसा काट के मैंने दिखाया है, VTS ऑफ द थैलस, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन। VTS means vertical transverse section. Look here, this is the upper epidermis, this is the lower epidermis. ये लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस से यहाँ देखिए क्या निकला है, राइजोइड। So we can say anatomically the thallus of the Markensia is divisible into two parts. The upper part is called photosynthetic zone and lower part is called storage zone. Upper epidermis has some air pore by which exchange of gases takes place. The photosynthetic zone shows the chamber-like structure. This is called air chamber, and these are the photosynthetic filament. Photosynthetic filament. इस तरह आज आपने किस चीज की स्टडी की? मार्केंसिया की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी की। ओके